So today I am going to discuss about previous year questions of SSC exam on the topic compressive strength of concrete. So first question is, concrete attains major part of its strength in. First option is 1 week, second option is 2 week, third option is 4 week and last option is 5 week. So basically SSC एग्जाम में ये 2 times क्वेश्चन पूछा गया है 2004 and 2005. So concrete attains 2/3 of 28 days strength in 7 days. And 28 days strength of concrete is used to donate the strength of the concrete. So 28 days strength of concrete is used to donate the strength of concrete. सो कंक्रीट बेसिकली जो मेजर जो पार्ट होता है स्ट्रेंथ का वो 7 डेज पे ही गेन कर लेता है, अटेंड कर लेता है. तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज 1 week. नेक्स्ट क्वेश्चन इज M20 grade of concrete implies that the strength of 15 centimeter cubes at 28 days of curing shall be. First option is 20 kg per centimeter square. Second option is 8 kg per centimeter square. Third option is 20 Newton per mm square and last option is 8 Newton per mm square. ये फोर टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्जाम में 2004 में, 5 में, 8 में एंड 15 में. सो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. सो M स्टैंड्स फॉर होता है दैट इज मिक्स एंड 20 रिप्रेजेंट जो नंबर्स करता है वो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट of 15 centimeter cubes at 28 days equals to 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और कह सकते हैं that is 200 kg per centimeter square. So basically M20 क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? That is characteristic compressive strength of the concrete at 28 days equals to 20 Newton per mm square और 200 kg per centimeter square. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? That is 20 Newton per mm square. Next question is, characteristic strength of concrete is measured at. ऑप्शन क्या है? 14 days, 28 days, 91 days, 7 days. और ये बेसिकली ये 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में, 5 में और 10 में. So the characteristic strength of concrete is measured at 28 days in 15 centimeters cube. So basically जो strength of concrete होती है उसको जनरली मेजर करते हैं 28 days पे. So correct option क्या होगा यहाँ पे? It is 28 days. Next question है, increase in the moisture content in concrete. ऑप्शन क्या है? reduce the strength, increases the strength, does not change the strength, none of these. 2004 में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है. So increase moisture content, it means increases the water cement ratio, results in reduction in strength. So as per Abraham's law, strength is inversely proportional to water cement ratio. So strength is inversely proportional to water cement ratio. So अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड द स्ट्रेंथ, सो ग्राफ इस टाइप से आता है. सो जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा, ठीक है, तो उतने ही ज्यादा क्या होगी? दैट इज स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की. सो अगर हम मॉइस्चर कंटेंट हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS code has specified the full strength of concrete after. ऑप्शन क्या है? 14 days, 28 days, 91 days, 7 days. और ये बेसिकली 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो एज पर IS code, strength of concrete is taken at 28 days in
15 mm cubes. So strength of concrete is taken as 28 days in 150 mm cubes. So correct option क्या होगा? That is 28 days. Next question है, the strength and quality of concrete depends upon. ऑप्शन क्या है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ऑल द अबव. 2008 और 16 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है. सो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे पहले तो. सो जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? दैट इज स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की. सेकेंड होता है, डिपेंड्स करेगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कंक्रीट पे. सो अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा, सो लार्ज सरफेस एरिया के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा हायर वाटर सीमेंट रेशियो. तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हायर है, तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हायर है तो क्या होगा? स्ट्रेंथ जो आपकी वो लोअर होगी. सेकेंड है दैट इज सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट. सो अगर रफर सरफेस आपको होगा तो उससे क्या होगी? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी. तो ग्रेडिंग पे भी डिपेंड्स करते हैं स्ट्रेंथ, ग्रेडिंग एंड सरफेस एरिया पे भी, सरफेस टेक्सचर पे भी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एस्टिमेट 28 days crushing strength of concrete cube from 7 days cube strength, we multiplied the 7 days cube strength by. ऑप्शन क्या है? 3, 1.5, 2.5, 1.5. 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो 7 डेज पे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? बेसिकली 2/3 ऑफ 28 days स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है. सो अगर आपको 28 डेज की स्ट्रेंथ पता करना है इन कंपैरिजन टू 7 डेज, या कह सकते हैं कि 7 डेज के हिसाब से 20 डेज कितनी होगी, तो यहाँ से अगर आप देखें तो दैट इज 3/2 ऑफ 7 डेज स्ट्रेंथ जो होगी वो कितने की इक्वल होगी? दैट इज 28 डेज पे. सो दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 7 डेज स्ट्रेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट इज 28 डेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की इक्वल होगी. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीनियर. सेकंड ऑप्शन क्या है? नॉन लीनियर. थर्ड ऑप्शन क्या है? एसिम्प्टोटिक. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव. 2014 बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है. सो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट इनिशियल डेज and thereafter increases at a slower rate. So basically अगर ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द एज या टाइम और वाई एक्सिस पे अगर ले जाए या स्ट्रेंथ, सो ग्राफ जो होता है कंक्रीट का बेसिकली वो इस टाइप से बनता है. सो इनिशियल स्टेज पे क्या होती है? इंक्रीज जो है स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है एट अ फास्टर रेट से, और उसके बाद क्या होती है? स्लोअर रेट हो जाता है. तो इस ग्राफ से अगर देखने से हमको पता चल रहा है, अगर स्ट्रेंथ और टाइम्स के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये ग्राफ क्या है? दैट इज नॉन लीनियर ग्राफ है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज नॉन लीनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली concrete cubes are tested to measure the concretes. ऑप्शन क्या है? फर्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन, सेकेंड ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेन, ट्विस्टिंग स्ट्रेन, नन ऑफ अबव. 2014 बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है. सो अगर कंक्रीट क्यूब्स बेसिकली बनाया जाता है, सैंपल्स बनाते हैं फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड करने के लिए. बीम्स जो है कास्ट किया जाता है, सैंपल्स बनाया जाता है फॉर फ्लेक्सुरल स्ट्रेन के लिए. एंड सिलेंडर जो है कास्ट किया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंक्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड टू मेजर द दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट
specimens required to finding the compressive strength of concrete are, ऑप्शन क्या है, 3, 5, 6, 9। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज पर IS 456/2000 and clause that is 15.4 test results of samples। तो clause 15.4 क्या है बेसिकली, the test results of sample shall be average of the strength of 3 specimen। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 28 डेज पे आप स्ट्रेंथ को आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको 3 सैंपल्स या स्पेसिमेंस को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट। सो 3 सैंपल्स को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 7 डेज पे आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपको 3 स्पेसिमेन आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और तीनों की जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी वही क्या होगी, 28 डेज स्ट्रेंथ आएगी। इसकी जो 3 सैंपल्स आप टेस्ट करेंगे उस पर जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी वो भी आपकी वो बेसिकली क्या होगी, 7 डेज स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज से। सेकंड उसके आगे क्या है, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। इट मीन्स अगर आप 28 डेज पे 3 सैंपल्स आपने टेस्ट किया, सपोज उसकी स्ट्रेंथ आती है, फर्स्ट सैंपल्स की आती है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सेकेंड सैंपल्स की स्ट्रेंथ आती है डेट इज मान लीजिए 25, एंड थर्ड सैंपल्स की स्ट्रेंथ आती है मान लीजिए 35, ठीक है। सो कोड ये कहता है कि इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ आएगी उसका वेरिएशन जो है वो ±15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें से जो इनका जो आप वेरिएशन निकालेंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या, इंडिविजुअल का, इसके आगे बोला जाता है कि इफ मोर द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल्स आर इनवैलिड। अगर 50 प्लस माइनस 15% से वेरिएशन ज्यादा होता है तो आपके रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर डेज पे आप जो भी स्ट्रेंथ चेक करेंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन जो टेस्ट करेंगे वो एटलीस्ट 3 सैंपल्स टेस्ट करेंगे, और तीनों की जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी वो क्या होगी, डेट इज 28 डेज, जो पर्टिकुलर डेज पे जो स्ट्रेंथ चेक करेंगे वही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज 3 सैंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कंपेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज, ऑप्शन क्या है, लेस, सेकेंड ऑप्शन है मोर, थर्ड ऑप्शन है इक्वल, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो द साइज ऑफ क्यूब स्पेसिमेन इज रिड्यूस, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। तो जितना आपके साइज ऑफ क्यूब के जो साइज ऑफ क्यूब जो जितना भी आपका कम होगा उतनी ही आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 mm क्यूब्स अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ले क्यूब्स की, तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो 150 mm क्यूब से तो यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब स्पेसिमेन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ लोडिंग। तो अगर जितनी आपका रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होगी उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है साइज के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इट इज मोर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट रेशियो द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 डेज टू दैट ऑफ 28 डेज। ऑप्शन क्या है, 0.65, 0.85, 1, 1.15। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो 7 डेज पे जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज 2/3 ऑफ 28 डेज। अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो 7 डेज अपॉन 20 डेज क्या होगा, 2/3, इट मींस 0.6 या 0.65। तो रेशियो कितना होगा, दैट इज 0.65, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट इन kg/cm² इज, ऑप्शन क्या है, 100, 150, 200, 300। 2016 क्वेश्चन पूछा गया है। सो M स्टैंड्स होता है मिक्स एंड 30 रिप्रेजेंट्स नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर mm², और कह सकते हैं दैट इज 300 kg/cm²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 300, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन क्या है,
सीमेंट वाटर रेशियो, सैंड सीमेंट रेशियो, वाटर एग्रीगेट रेशियो, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अब्राहम्स लॉ क्या है कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हो जाएगा वाटर अपॉन सीमेंट, सॉरी सीमेंट अपॉन वाटर। तो स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, डेट इज सीमेंट अपॉन वाटर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।